Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting chapter, that is the wave optics. Three phenomenons are very most important for the wave optics: interference, diffraction, and polarization. Right now we are discussing interference phenomenon. So there are some conclusionary points we are going to discuss. We are going to refer. Actually, we had already completed interference, but right now I'm going to discuss some conclusions regarding on the interference, and then after we also discuss some basic numericals of that remaining numericals of this topic. So as you know, effect produced by the superposition of two or more waves is defined as a interference, and that is known to you, but it may possible that the two sources are having the same intensity or they are having a different intensity. If we assume that their intensities are same, then you can write down the formula of the resultant intensity at a point of interference as a 4I0 cos square 5 by 2. That is seen here, right? Okay. So, and in this particular situation, if the sources are coherent, that is the phi, that is the phase difference between them is not varying with the time. Then in this kind of situation, at some places on the screen, there are a constructive interference. At some places, there are a destructive interference. The places where the constructive interference takes place, where at that place is the resultant intensity will be 4I0, and the place where destructive interference takes place, resultant intensity becomes 0. The condition for the constructive and destructive interference in the form of path difference and phase difference, it is written in this screenshot. For the constructive interference, path difference should be n lambda and phase difference should be 2n pi. For the destructive interference, path difference, you can write 2n plus 1 lambda by 2. So if you are writing 2n plus 1 lambda by 2, you have to start n from, if you write 2n plus 1 lambda by 2, then you have to start from n from 0, 1, 2, 3. But if you are writing 2n minus 1 lambda by 2, n starts from 1, 2, 3. Similarly, phase difference 2n minus 1 pi. So this is for the coherent sources. But if the sources are not coherent, incoherent sources, then the phi will vary with the time. So that's why our eye can detect only the average intensity, and it is found to be that the average intensity over there in the screen at every point will be equals to 2I0. So we'll not getting any pattern of different intensity. Throughout the screen, we have a same intensity. And this is the reason why if we start a two bulbs in the room, but on the wall of the room, we are not getting any kind of pattern because the bulbs are behaving as a incoherent sources. Suppose we are having intensity, we are having a two sources having a different intensity. So in this kind of situation, the resultant intensity can be given by formula I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi, where phi is the phase difference. So in this situation also, for the constructive interference, phi, if we consider phi is equals to 2n pi, and the maximum intensity we were able to get, that is I1 plus I2, 2 root I1 I2 for the coherent sources. And for the destructive interference, the resultant intensity is a I1 plus I2 minus 2 root I1 I2. And if the sources are incoherent, then the resultant intensity is equals to I1 plus I2 everywhere. So this is about the uh, if the two source we are having a different intensity. So in this case also, what happened to the constructive interference, and what happened to the destructive interference, what have happened when the sources are coherent, and what happened when the sources are incoherent, that is all thing is mentioned here. After that, we discuss about the Young's experiment, and that was a very important topic. So in the Young's double slit experiment, what we get, we got that intensity on the screen at every point. In the case of constructive interference, in the case of a Young double slit experiment,
we know that the path difference at any point can be given by x small d upon capital D, where x is the distance of that point from the middle of the screen, from the middle central, that from the central fringe. Capital D is the distance of a screen from the sources, and small d is the distance between the two sources. So that we had derived, and we also noted that for the constructive interference, there's a path difference x small d by capital D should be compared with the n lambda. For the dark fringe, that is for the destructive interference, the path difference should be compared with the 2n minus 1 lambda by 2. We also had derived the equation for the distance between the two bright or dark fringes, and that is found to be a lambda capital D by small d. देखो, you must remember that the path equation of the path difference is x small d by capital D, and the fringe width, that is the distance between the two dark or bright fringe, should be remember as a lambda capital D by small d. Both are different. You should not mess with it. And we also noted that if you change the lambda if we change the lambda, then the fringe width or pattern will going to be changed, because the fringe width is depend on the lambda. So if you change the lambda, then if the lambda increases, then the pattern becomes broader, wider. सर बहुत लेग हो रहा था. Okay. Is it okay now? Is it okay now? Am I audible to you, friends? Okay, friends, let's solve some numerical. Are you able to see the question number 5 in your mobile screen? Friends? Yes, sir. Okay. So question number 5, I'm going to discuss, and whatever the numerical we are going to discuss today's lecture, these are a very important, very, very important. So what is mentioned in the question? In the Young's double slit experiment using a monochromatic light of a wavelength lambda, the intensity of a light at a point on the screen where the path difference is a lambda is a K unit. So what is the intensity at a point where the path difference is a lambda by 3? So friends, I want to derive the relation between the path difference and phase difference first. So as you know, if there is a path difference between the two sources, if it is a lambda, then you know what is the phase difference for that. If the path difference is lambda, then what should be the phase difference? कोई बताएगा? For the lambda path difference, what is the phase difference? अगर एक साइकिल कंप्लीट होती है तो उसका पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, बट अगर एक साइकिल कंप्लीट होती है तो फेज कितना खत्म होगा? एक सर्कल कंप्लीट हुआ तो फेज कितना खत्म होगा? 2 pi. So for the path difference lambda, the phase difference is 2 pi. So let us, we have a path difference x, then what should be the phase difference? कोई बताएगा मुझे? अगर पाथ डिफरेंस x है तो फेज डिफरेंस क्या मिलेगा? कोई बताएगा मुझे? लैम्डा के लिए 2 पाई है तो x के लिए कितना होगा? तो दैट इज 2 पाई x बाई लैम्डा. तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर आपको फेज डिफरेंस निकालना है, अगर आपके पास पाथ डिफरेंस है, तो आपको पाथ डिफरेंस को क्या करना है? x इज अ पाथ डिफरेंस.
तो अगर आपके पास पाथ डिफरेंस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 2 पाई बाई लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, बोलो क्या मिल जाएगा, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मिल जाएगा। देखो, नाउ द वेरी लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। So in the Young's double slit experiment, we are using the intensity, we are using the sources, coherent sources with the same intensity. So for that kind of situation, for the two same intensity, what is the equation of the intensity? अगर दोनों सोर्स के इंटेंसिटी सेम है तो इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या आएगा भैया, कोई बताएगा? 4i0 को स्क्वायर 5/2। और मुझे ये बताओ, ये फाइ क्या है भैया? Difference. It is a phase difference. Okay, so that is the intensity. Now case number 1. In the case number 1, it is mentioned that path difference is a lambda, and for that the intensity is k. So हमको ऐसा दिया हुआ है केस 1 में कि पाथ डिफरेंस जो है ना वो लैम्बडा है। तो मुझे कोई बताएगा फेज डिफरेंस क्या रहेगा? तो अगर आपको फेज डिफरेंस फाइंड करना है तो क्या करना होगा आपको, जो भी आपका पाथ डिफरेंस है उसको 2 पाई बाई लैम्बडा से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको फेज डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, तो हमारा जो फेज डिफरेंस होगा उसको मान लो कि फाई है, तो क्या करना है, 2 पाई बाई लैम्बडा को पाथ डिफरेंस लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दो। तो वैसे हमको पहले से ही पता था कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई आने वाला ही है, वो तो पहले से ही पता था, बट ये इक्वेशन वाइज किया। चलो, तो अब मुझे इंटेंसिटी क्या मिलेगा, तो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ द इंटेंसिटी 4i0 कोस स्क्वायर 5/2। अब 5 का वैल्यू हमको मिला कि हमको क्या लिखना पड़ेगा, 5 का वैल्यू, ये 5 जो है ना वो फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस का वैल्यू कितना मिला मुझे, 2 पाई। It is a 2 pi by 2. So it is comes out to be a 4i0 cos square pi। अब cos pi का जो वैल्यू है ना वो -1 है, और उसका स्क्वायर करोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो इसका मतलब कि आपका जो इंटेंसिटी है वो आपको 4i0 मिलेगा, बट it is given in the question that intensity is a k unit. So in the first case, whatever the intensity you obtain, that is given as of k units. So k is equals to 4i0, इक्वेशन नंबर 1। और अब क्या करना है मुझे ये करना है कि अगर वो पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 3 हो जाए तो तब जाके इंटेंसिटी कितना मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन है। अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा के बदले लैम्बडा बाई 3 हो जाएगा, then what is the new intensity now? That is the question. So let's do case number 2। तो अभी हमको दिया है कि पाथ डिफरेंस क्या है भैया, लैम्बडा बाई 3 है। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट शुड बी द फेज डिफरेंस? तो फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू लैम्बडा बाई 3। सो द आंसर इज 2 पाई बाई 3 यूनिट्स, 3 रेडियन। चलो, फेज डिफरेंस मुझे मिल गया। अब मुझे है ना इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो वंस अगेन अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी 4i0 को स्क्वायर 5/2, but where phi is the phase difference and it is comes out to be a 2 pi by 3/2 cos square 5/2, where phi is equals to 2 pi by 3 now. Now the 2 get cancelled, so it is comes out to be a 4i0 cos square pi by 3। तो कोई मुझे बताएगा ये cos pi by 3 का वैल्यू कितना आता है? अरे cos 60 का वैल्यू क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे? 1/2.
1/2। और ये 4i0 जो है ना, वो तो 4i0 तो पता किया हमने कि वो तो k है, तो 4i0 के बदले k लिखेंगे एंड ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4। तो फाइनली इन द सेकंड केस द इंटेंसिटी कैन बी गिवन बाय k/4। तो हमको ऐसा दिया गया था कि जहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्बडा है वहाँ पे इंटेंसिटी 4, वहाँ पे इंटेंसिटी k है, तो जहाँ पे पाथ डिफरेंस λ/3 होगा तो वहाँ पे इंटेंसिटी कितना रहेगा। So we found that lambda for λ/3 part difference we got the intensity equals to k/4। तो क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया? Is it understood friends? हाँ कि ना तो बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's come to the question number 6। Okay, so here is the question number 6। Okay, and it's a very 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 important question। ये बहुत अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी मैंने देखा हुआ है एंड बोर्ड के एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो। चलो, पहली बात तो ये कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इंटरफेरेंस का, जो मैं इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसमें अगर मैं लैम्बडा को चेंज करता हूँ, मैं वेवलेंथ को चेंज करता हूँ, तो क्या होगा भैया? अगर हम लैम्बडा को चेंज करेंगे तो आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो चेंज होगा, बिकॉज इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर जो फ्रिंज विड्थ है वो लैम्बडा के ऊपर डिपेंडेंट है, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। फ्रिंज विड्थ इज डिपेंड ऑन द लैम्बडा। तो अगर आप लैम्बडा चेंज करोगे तो आपका पैटर्न का ब्रॉडनेस भी चेंज होगा। जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे दो सोर्सेज है, S1 एंड S2, and exactly in the perpendicular bisector, assuming that this one is our screen। अभी जो है ना, हम ऐसे हम कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जो वो वेवलेंथ है ना वो अभी कम है। तो अगर वेवलेंथ कम है तो उसका जो पैटर्न होगा वो थोड़ा हमको नैरोअर मिलेगा। चलो, ये तो आपको पता है कि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एग्जैक्टली जो सामने की तरफ है वहां पे हमको डार्क फ्रिंज मिलेगा या ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन, दैट इज एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द S1 and S2। वहां पे क्या मिलेगा? वहां पे पाथ डिफरेंस जीरो है। तो पाथ डिफरेंस जीरो होना मतलब एन लैम्बडा का फॉलो करना। एन लैम्बडा का फॉलो करना मतलब वहां पे आपको क्या मिलेगा? कोई बताएगा मुझे? ब्राइट फ्रिंज मिलेगा या डार्क मिलेगा? कोई बताएगा? एनीबडी? देखो, एग्जैक्टली जो होता है ना वहां पे तो आपको डार्क फ्रिंज ही मतलब ब्राइट फ्रिंज ही मिलता है। एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन यू विल गेट द डेफिनेटली अ ब्राइट फ्रिंज।
Okay, am I audible to you, friends? Friends, मेरी आवाज आ रही है? हाँ Yes, सर। sir. आज कुछ दिक्कत हो रहा है इंटरनेट में? Okay, so once again, I'm going to explain you the question number 6. Okay. So मैं ये बता रहा था कि अगर आप वेवलेंथ को चेंज करते हो तो क्या होगा, आपका फ्रिंज पैटर्न जो होता है ना वो भी चेंज होगा, आपका फ्रिंज पैटर्न भी चेंज होगा। अगर आप वेवलेंथ इंक्रीज करते हो तो आपका फ्रिंज का ब्रॉडनेस जो है वो इंक्रीज होगा, मतलब आपका पूरा जो स्क्रीन पे पैटर्न फॉर्म होने वाला है उसका ब्रॉडनेस बढ़ेगा। और अगर आप वेवलेंथ डिक्रीज करते हो तो पूरे फ्रिंज का पैटर्न आपका डिक्रीज मतलब नैरोवर होगा। तो मैं ये बता रहा था कि मान लो कि हमारे पास दो सोर्सेज है S1 एंड S2। इफ वी आर हैविंग टू सोर्सेज S1 एंड S2, तो उसके एग्जैक्टली जो सामने की तरफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो हमारा जो स्क्रीन होता है, तो जो मिडल में जो फ्रिंज प्रोड्यूस होगा वो डेफिनेटली कैसा होगा फ्रेंड्स, बताओ, कोई बोलेगा? तो ये जो आपका फ्रिंज होगा वो डेफिनेटली ब्राइट होगा, बिकॉज वहां पे पार्ट डिफरेंस 0 होता है। फिर उसके आजू बाजू जो आएगा वो डार्क फ्रिंज आएगा, वापस से ब्राइट, वापस से डार्क, ऐसा चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। ऊपर की साइड जो है वही नीचे की साइड है। ओके, मैंने ना पहले हायर वेवलेंथ के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, अब मैं थोड़ा वेवलेंथ को मैं डिक्रीज करूंगा। तो कोई मुझे बताएगा अगर मैं वेवलेंथ को डिक्रीज करता हूं तो मुझे पैटर्न में क्या वेरिएशन मिलेगा? कोई बताएगा मुझे? वही स्क्रीन है, स्क्रीन तो वही है, बट अगर मैं वेवलेंथ को डिक्रीज करके एक्सपेरिमेंट करूंगा तो कोई बताएगा मुझे फ्रिंज विड्थ में क्या होगा? फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। तो बताओ मुझे क्या होगा अगर मैं वेवलेंथ को डिक्रीज करता हूं तो मेरा जो पैटर्न मिलेगा वो कैसा मिलेगा? कोई बताएगा? सर वेट डिक्रीज होगी। हाँ, पैटर्न का विड्थ जो है ना वो डिक्रीज होगा, बट सेंटर पे तो जो है ना वो तो हमको सेंटर पे तो मतलब हमको सेंटर पे तो ब्राइट फ्रिंज ही मिलेगा। बट अब होगा क्या, अब जो सारे फ्रिंजिस है ना वो थोड़े नजदीक आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि जिस डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस पे जो हायर वेवलेंथ का जो थर्ड, जहां पे थर्ड फ्रिंज फॉर्म हो रहा था, उसी डिस्टेंस पे इसका कौन सा वाला फ्रिंज डेवलप हो रहा है देखो तो, 1 2 3 एंड फोर्थ वन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर आपने वेवलेंथ डिक्रीज करके एक्सपेरिमेंट किया है तो स्क्रीन पे जो पॉइंट पे हायर वेवलेंथ का थर्ड या फोर्थ फ्रिंज डेवलप होगा उसी पॉइंट पे स्मॉलर वेवलेंथ का कुछ ज्यादा नंबर का फ्रिंज वहां पे डेवलप होगा, बिकॉज वो उसका वो जो फ्रिंज लेंथ है वो फ्रिंज विड्थ है वो नैरोवर है। तो ये चीज आपको माइंड में रखना है, इसके बेस पे ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 1, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ टू वेवलेंथ्स 650 nanometer and 520 nanometers. So here we are having a two wavelengths, 650 nanometer and 520 nanometers. So question number 1, find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maximum. देखो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, we just wants to find the distance of the third bright fringe। पहले मुझे ये बताओ कि ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज है
तो उसके लिए मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एप्लीकेशन करना पड़ेगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा? थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए मुझे कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा या डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव। चलो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मुझे पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा? व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस? फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस? देखो, पार्ट डिफरेंस का बेसिक फॉर्म तो एक्स डी बाई डी है, बट इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना चाहिए? एन लैम्डा, बिकॉज एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू, दैट इज अ पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कौन सा वाला फ्रिंज है? तो बोले थर्ड ब्राइट फ्रिंज है। तो एक्स 3 स्मॉल डी बाई डी इज इक्वल टू 3 लैम्डा, बिकॉज फॉर द थर्ड फ्रिंज एन शुड बी टेकन 3। चलो, अगर यहाँ पे मुझे ऐसा पूछा होता कि थर्ड डार्क फ्रिंज का लोकेशन कौन सा है, तो मैंने राइट साइड क्या लिखा होता एन लैम्डा के बदले? अगर डार्क फ्रिंज का लोकेशन मुझे पूछते तो मैंने राइट साइड एन लैम्डा के बदले क्या लिखा होता? 2n minus 1 lambda. वेरी गुड, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे मुझे लोकेशन मतलब एक्स पूछा है, तो कैन आई से 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब देखो, आपको वेवलेंथ दिया गया है 650 नैनोमीटर। आपको यहाँ पे कैपिटल डी, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है एक्चुअली डी इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग, बट स्मॉल डी एंड कैपिटल डी इज ऑल्सो गिवन. So as all the three parameter is given, you can find the location of the third bright fringe. Is that clear, friends? For the lambda is equal to 650 nanometer. क्या ये बात समझ में आई friends? Yes, sir. अब जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका रीजन ये सेकंड पॉइंट है. ये सेकंड क्वेश्चन जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब क्या लिखा है, ध्यान से सुनो. What is the least distance from the central maximum fringe? Central bright fringe. What is the least distance from the central maximum where the bright fringe is due to both the wavelengths coincide? देखो, ये चीज अभी मैंने जो समझाई थी ना, कि भाई ऐसा पॉसिबल है कि एक ही लोकेशन पे अलग अलग वेव्स के अलग अलग नंबर के फ्रिंज एक ही लोकेशन पे कोइंसाइड हो सके, ऐसा पॉसिबल. देखो देखो, ये फिगर अभी दिख रही, आप अभी फिगर मैंने रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो कि स्क्रीन के जो लोकेशन पे ये रेड कलर का थर्ड फ्रिंज मिल रहा था, उसी लोकेशन पे ये ब्लू कलर का फोर्थ फ्रिंज मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कोइंसाइड. तो ऐसा पॉसिबल है. तो वो डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है, वो डिस्टेंस ही फाइंड करना है. तो ऐसा मान लो कि लैम्डा 1 वेवलेंथ का n1th फ्रिंज वहां पे है एंड लैम्डा 2 वेवलेंथ का n2 फ्रिंज वहां पे है. तो लैम्डा 1 के लिए आपको लिखना पड़ेगा x स्मॉल d बाई कैपिटल D इज इक्वल्स टू n1 लैम्डा 1. वेल द ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड, ब्राइट ही लेना है, तो ब्राइट के लिए कंडीशन होगा n लैम्डा. तो लैम्डा 1 के लिए n1 लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड तो x d बाई डी ही रहेगा. लेफ्ट हैंड साइड तो वही का वही रहेगा. लेफ्ट हैंड साइड तो x d बाई डी ही रहेगा. क्यों? बिकॉज लोकेशन तो वही का वही है ना. तो स्मॉल d कैपिटल D एंड x इज नॉट गोइंग टू बी वेराइट, बट यहाँ पे राइट साइड क्या आ जाएगा भैया, n2 लैम्डा 2. तो फिर अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई x स्मॉल d बाई डी इज इक्वल टू n1 लैम्डा भी लिख सकते हो आप, n2 लैम्डा 2 भी लिख सकते हो. तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आप ये एज अ शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो कि भाई व्हेनेवर देयर आर द फ्रिंजेस कोइंसाइड, तो आप ये एज अ शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो. x स्मॉल d बाई कैपिटल D इक्वल्स टू n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2, ये आपका शॉर्टकट होगा. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे n1 लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2 अप्लाई करते हैं. तो n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1. तो ये जो लैम्डा 2 है ना, वो 520 नैनोमीटर है एंड लैम्डा 1 जो है ना, वो 650 नैनोमीटर है. तो ये आपका आंसर आएगा 4/5. तो चलो, ये 4/5 मिला. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर n1 का वैल्यू हम 4 लेते हैं तो मुझे n2 का वैल्यू 5 लेना पड़ेगा. चलो, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, कोई बताएगा?
अगर मैं n1 का वैल्यू 4 लेता हूं तो मुझे n2 का 5 लेना पड़ेगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? सर यानी फोर्थ फ्रिंज और फिफ्थ फ्रिंज। एग्जैक्टली, λ1 वेवलेंथ का 4th फ्रिंज एंड λ2 वेवलेंथ का 5th फ्रिंज वो वहां पे कोइंसाइड होगा। या फिर हम ऐसा भी ले सकते हैं, चलो 8/10 भी लिख सकता हूं मैं 4/5 के बदले। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 8/10? यस और नो? यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई मुझे बताएगा? मतलब इतने ये डिस्टेंस पे 4th एंड 5th फ्रिंज अगर सुपरपोज हो रहे हैं तो उसके डबल डिस्टेंस पे कौन से फ्रिंज स्क्रीन पे कोइंसाइड हो गए? λ1 का 8th फ्रिंज एंड λ2 का कौन सा 10th फ्रिंज। हम ये भी लिख सकते हैं 12th एंड 15, तो मतलब λ1 का 12th है तो वहां पे λ2 का 15th है। बट मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि यू हैव टू कंसीडर द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली मुझे कौन सा वाला वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा? n1 एंड n2 का कौन सा वैल्यूज कंसीडर करना पड़ेगा? बिकॉज वी वांट्स टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। तो सबसे पहले कहाँ पे कोइंसाइड होता है वो देखना है, तो कौन सा वैल्यू मुझे लेना पड़ेगा n1 n2 का? कोई बताएगा? देखो 4th एंड 5th कोइंसाइड होगी, फिर उसके डबल डिस्टेंस पे आपको 8th एंड 10th कोइंसाइड होगा, फिर उससे ज्यादा कोई डिस्टेंस पे 12th एंड 15 कोइंसाइड होगा। बट मुझे सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो कंसीडर करना है, तो मुझे n1 एंड n2 के कौन से नंबर कंसीडर करने पड़ेंगे? 4 and 5। 4 and 5, very good. So I will take a n1 is equals to 4 and n2 is equals to 5. चलो ये पता चल गया। अभी जो इक्वेशन नंबर 1 जो है ना शॉर्टकट, उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x स्मॉल d बाई कैपिटल D इज इक्वल्स टू n1 λ1। अब λ1 का वैल्यू जो है ना वो 650 नैनोमीटर है, n1 का वैल्यू 4 है। स्मॉल डी एंड कैपिटल डी ऑलरेडी गिवन, मैंने बताया ना कि वो आपको यहाँ पे नहीं दिखा है बट वो दिया गया होगा। तो क्या वो x लोकेशन आप फाइंड कर सकते हो? क्या वो लोकेशन आपको मिल जाएगा, कौन से लोकेशन पे ये कोइंसाइड होते हैं दोनों फ्रिंजेस? इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस और नो? हमारे पास n1 का वैल्यू 4 है, λ1 भी है, तो n1 है, λ1 है, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी विल बी गिवन टू यू। तो हमको x फाइंड करना था, तो x मिल जाएगा भैया। हाँ, आप इसको अगर आपको n1 का वैल्यू प्लेस नहीं करना है तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द n2 λ2, यू विल गेट द सेम आंसर। n2 का वैल्यू 5 है, λ2 का 520 है, स्मॉल डी कैपिटल डी दिया गया है, तो आपको x मिल जाएगा। मतलब आप दोनों चीज में जो भी करना है वो कर सकते, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। बट क्या ये क्वेश्चन समझ में आया भैया? यस सर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। चलो इसके ऊपर से मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब ऐसा हुआ, मोनोक्रोमेटिक का मतलब ऐसा हुआ कि जिसमें एक ही वेवलेंथ है, जिसमें एक ही वेवलेंथ है। बट सपोज ये यंगस एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट के बदले सपोज के सनलाइट इंसिडेंट कराया है, सनलाइट। तो सोचो तो आपको स्क्रीन पे क्या मिलेगा, थोड़ा सोच के बताना। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट के बदले सनलाइट का यूज करते हैं तो क्या मिलेगा, सोच के बताओ स्क्रीन पे। रेनबो। हाँ, तो आपको स्क्रीन पे क्या मिलेगा, अलग अलग कलर्स के आपको फ्रिंजेस मिलेंगे, 7 डिफरेंट कलर्स के फ्रिंजेस मिलेंगे। बट वो सारे फ्रिंजेस का जो सेंट्रल फ्रिंज होगा ना, सेंट्रल, वो तो वहां पे ही लोकेट होगा। मतलब एग्जैक्टली ये जो परपेंडिकुलर बाइट सेक्टर में क्या होगा कि सारे कलर्स के फ्रिंजेस वहां पे तो आएगा ही आएगा, तो वो फ्रिंज कैसा हो जाएगा बताओ मुझे? अलग अलग 7 पैटर्न जनरेट हो गए बट सारे पैटर्न्स का जो सेंट्रल लोकेशन होगा ना वो तो वही होगा। तो मतलब वहां पे 7 कलर, ऑल द 7 कलर इज गोइंग टू बी एडेड ओवर देयर, सो दैट फ्रिंज इज कम्स आउट टू बी हाउ विच विथ कलर? तो वहां पे सारे कलर्स वापस से वहां पे मिलेंगे, तो वो कैसे? वाइट। वो वाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है कि अगर हम यंग्स एक्सपेरिमेंट के अंदर मोनोक्रोमेटिक लाइट के बदले अगर हम व्हाइट लाइट का यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं, तो आपको
जो स्क्रीन है, आपका जो स्क्रीन है वो पूरा कलर्ड मिलेगा, अलग अलग कलर्स के आपको फ्रिंज मिलेंगे, बट एग्जैक्टली सेंटर पे आपको कौन सा फ्रिंज मिलेगा, किस टाइप का फ्रिंज मिलेगा आपको? तो बोले वो व्हाइट मिलेगा आपको, बाकी सब कलर होगा बट बीच वाला व्हाइट होगा। क्यों? बिकॉज सारे कलर एक बार तो वहां पे मिलते ही है। क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? मुझे ये बताओ हाँ सर। कौन से कलर का फ्रिंज सबसे ब्रॉडर होगा? रेनबो में विबग्योर, तो कौन से कलर का पैटर्न जो है वो सबसे ब्रॉड होगा? अगर 7 कलर डिफ्रेंशिएट करते हो, 7 इमेजेस को अगर अलग सेपरेट करते हो, तो कौन सा ब्लू। देखो विबग्योर मतलब रेड सबसे लास्ट में आता है, उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि रेड कलर का जो ब्रॉडनेस है, उसके जो पैटर्न का जो ब्रॉडनेस है वो सबसे ज्यादा होगा। एंड वायोलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, तो वायोलेट के फ्रिंजेस एक दूसरे से बहुत नजदीक हो गए, उसके पैटर्न जो है ना वो नैरोवर हो गए। तो यू विल गेट द 7 डिफरेंट पैटर्न्स ranging from violet to the red. Red is having a maximum broadness, violet is having a minimum broadness, but all the 7 colors central fringe, all the 7 colors of central fringe will be located at the same position, and because of that in the screen a central fringe becomes white. So this kind of pattern you will get in this kind of situation. Is that clear friends? क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? સર અગર એ એક્સપેરિમેન્ટમાં અગર 4 સોર્સ યુઝ કરીએ અને બેની અલગ અલગ વેવલેન્થ એક જ સાથે સુપર ઇમ્પોઝ કરીએ તો देखो ડાયરેક્ટ કોઇન્સાઇડિંગ just listen. Whatever the equation, whatever the discussion we had so far discussed, that is only for the two sources. So ये जो भी इक्वेशन हमने डिस्कस किया, ये जो भी हमने सुपर पोजिशन किया कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, दैट इज फॉर द टू सोर्सेज ओनली। इज इट क्लियर? हाँ, ये जो टू सोर्सेज है वो ऐसा पॉसिबल है कि हम वहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे 2 लाइट के कलर्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं, सोर्स के अंदर एक साथ 2 कलर के फ्रिंजेस प्रोड्यूस हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। बट 4 अलग अलग सोर्स के साथ सुपरपोजिशन होगा तो क्या होगा, उसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया है। चलो आप फिर से आपका क्वेश्चन एक बार फिर से पूछो, मुझे क्या बोल रहे हो? સર એટલે આ એક્સપેરિમેન્ટમાં એટલે એક જ સ્ક્રીન ઉપર ડાયરેક્ટ કોઇન્સાઇડિંગ ફ્રિન્જીસ ના ફાઇન્ડ કરી શકીએ એટલે અલગ અલગ વેવલેન્થ કર્યા કરતા क्या फाइंड क्या करना है आपको? સર એજ કોઇન્સાઇડિંગ ફ્રિન્જીસ नहीं, वो तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको 2 अलग अलग फिगर बताया था, but actually यहाँ in this experiment it is happening simultaneously and that is why the coincidence takes place. Otherwise तो अगर if you are carried out the experiment with separately, so obviously this coincide will not be, they are not going to be coincide. तो आपको समझाने के लिए मैंने 2 अलग अलग स्क्रीन रखे थे, ओके, बट एक ही स्क्रीन पे सब कुछ करना है ये। ઓકે સર चलो, question number 7 is also a very intelligent question. But before starting the question number 7, I want to explain you something. So मुझे है ना सेंट्रल फ्रिंज का एंगुलर विड्थ फाइंड करना है। फ्रिंज विड्थ तो आपको पता है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला तो आपको पता है। चलो, फ्रिंज विड्थ का तो फॉर्मूला आपको पता है, तो बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्रिंज विड्थ? These are the two sources S1 and S2 और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो आपको ये स्क्रीन मैंने रखा हुआ है, ये स्क्रीन रखा हुआ है और सेंट्रल लोकेशन में आपको पता है कि वहां पे आपका ब्राइट फ्रिंज होगा, तो ये आपका ब्राइट फ्रिंज है सेंट्रल लोकेशन में। उसका विड्थ मुझे पता है, उसका विड्थ क्या है भैया? इसका जो विड्थ है ना
लैम्बडा कैपिटल डी बाई डी है. मोर प्रिसाइसली आई शुड से इट इज अ लीनियर विड्थ. अब मुझे है ना इसका मुझे एंगुलर विड्थ फाइंड करना है. मतलब ये कौन सा एंगल बना रहा है वो मुझे फाइंड करना है. लीनियर विड्थ तो मुझे पता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका एंगुलर विड्थ फाइंड करने के लिए वो एंगल कितना सबस्टेंड कर रहा है वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा. तो एट द लोकेशन ऑफ द सोर्स हाउ मच द एंगल इज गोइंग टू बी सबस्टेंड, दैट आई वांट्स टू फाइंड. मुझे उसका एंगल फाइंड करना है. चलो, तो एंगल कैसे मिलेगा? तो आपको पता है कि एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है भैया. यस और नो? अरे हाँ के ना तो बोल दो. Am I audible to you, friends? Width of the fringe is a beta is equals to lambda d by d. But now what I want to find? I want to find the angular width, because in the question, a question is regarding on the angular width. तो एंगुलर विड्थ अगर आपको थीटा फाइंड करना है तो आपको आर्क अपॉन रेडियस करना पड़ेगा. आपका जो आर्क है ना वो तो लैम्डा डी बाई डी ही है, बट आपका रेडियस कितना है भैया? आपका आर्क जो है वो तो लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी है, बट रेडियस कितना है आपको? कैपिटल डी. तो अब जाके पता चला कि आपका सेंट्रल और कोई भी फ्रिंज है तो उसका जो एंगुलर विड्थ है ना वो आपका आर्क अपॉन रेडियस के हिसाब से लैम्डा डी बाई डी अपॉन डी, डी डी गेट कैंसल, तो ये आपका लैम्डा बाई डी हो जाएगा. तो क्या फ्रेंड्स आपको ये पता चला? एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला समझ में आया फ्रेंड्स? यस और नो? यस. तो कहना इसे एंगुलर विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. हाँ के ना? यस. देखो अब क्वेश्चन क्या लिखा है, in a double slit experiment of the in the double slit experiment the angular width of a fringe is found to be 0.2 angstrom. Initially वो 0.2 angstrom है. On the screen placed 1 meter away, the wavelength of the light is right now 600 nanometer. What will be the angular width of a fringe if the entire experiment is immersed in the water? देखो पूरा अगर एक्सपेरिमेंट में वाटर के अंदर डालता हूँ, पूरा एक्सपेरिमेंट अगर मैं वाटर के अंदर डालता हूं तो फिर व्हाट हैपन टू द एंगुलर विड्थ? तो फ्रेंड्स एज यू नो इनसाइड द वाटर द लैम्डा इज गोइंग टू बी चेंज्ड. आपको पता है कि ये जो वेवलेंथ है ना दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेवलेंथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मीडियम. तो अगर मीडियम आप चेंज करते हो तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसके वजह से आपका एंगुलर विड्थ भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज एंगुलर विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. So theta dash upon theta is equals to lambda dash upon lambda. Theta dash upon theta is equals to lambda dash upon lambda. अब आपको शायद ये पता होगा कि मीडियम के अंदर आपका जो लैम्डा होता है ना वो लैम्डा डिवाइड बाई ईटा होता है. अगर आपका कोई रे वैक्यूम में से कोई और मीडियम में जाता है तो उसका वेवलेंथ डिवाइड बाई ईटा होता है. कैसे आया तो मैं आपको बताऊँ. एज यू नो ईटा इज इक्वल्स टू सी बाई वी. अब c is equals to f lambda and v is also equals to f lambda, but that is c is equals to f lambda where f is equals to f and lambda is the frequency and wavelength in the vacuum. v is also equals to f lambda, but that f and lambda is the frequency and wavelength in that medium. बट अगर आपको ये पता है कि भाई अगर कोई रे एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, तो एफ एंड एफ डैश विल बी द सेम, इट इज गेट कैंसल्ड. तो अब आप लैम्डा डैश को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हो, लैम्डा डैश को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हो तो क्या मिलेगा भैया आपको? लैम्डा बाई ईटा. तो नाउ आई कैन से थीटा डैश अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई ईटा अपॉन लैम्डा, तो बचेगा 1 बाई ईटा. तो अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि तो फिर हमारा ये जो थीटा डैश है दैट इज कम्स आउट विथ थीटा बाई ईटा. अब थीटा का वैल्यू तो 0.2 है, तो 0.2 डिवाइड बाई 4/3, तो ये आपका जो भी आएगा वो आंसर आएगा.
मतलब 0.4/3 मतलब 0.2 into 3 that is 0.6 divided by 4, तो आई थिंक 0.15 समथिंग आंसर आएगा, 0.15 डिग्री। तो क्या फ्रेंड्स ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया फ्रेंड? यस और नो? Yes. तो आपको इसमें एक नया फॉर्मूला यस सर। एक नया फॉर्मूला सीखने मिला कि फ्रिंज का जो विड्थ होता है ना वो तो लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है, बट एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या आएगा? अगर एंगुलर विड्थ पूछा है कहीं पे भी फ्रिंजेस का तो क्या आएगा भैया, बोलो? लैम्बडा बाय डी। हाँ, दैट इज ओनली लैम्बडा बाई डी, दैट इज ओनली लैम्बडा बाई डी। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? चलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं। ये लास्ट टाइम बोर्ड के एग्जाम के अंदर, लास्ट बोर्ड के एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन था, तो आपको थोड़ा सोच के आंसर देना है। लास्ट बोर्ड के एग्जाम में वो क्वेश्चन था, तो थोड़ा सोच के बताना। ओके वो क्वेश्चन है ना, दैट इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, वो टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, बट आप थोड़ा सोचो तो आप उसको सॉल्व कर पाओ, इस टाइप का क्वेश्चन है। ओके देखो, आपका इलस्ट्रेशन नंबर जो 3 है ना, मैं उसमें थोड़ा चेंज करूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर थोड़ा मैं चेंज करने वाला हूँ। नहीं, सर आज की मीटिंग सिक्योर नहीं है क्या? क्या क्या बोल रहे हो? आज की मीटिंग सिक्योर नहीं है? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? सर यहाँ पे कुछ एनक्रिप्शन में 1 एक्सेप्शन दे रहा है। क्या है? ग्रीन ग्रीन लोगो नहीं दिया है यहाँ पे, रेड लोगो है और इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन है, मतलब एरर है कुछ। क्या एरर है? ये सिक्योर है, देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये आपका रिकॉर्डिंग का बटन, उसके बाद में जो सिक्योरिटी का है, ओके। सो जस्ट लुक एट द क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स, क्वेश्चन में देख रहा हूँ। ओके यस, देखो ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, उसमें मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ओके फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, मान लो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के मुझे आंसर देना।
Find the distance between the third bright fringe. Find the distance between third bright fringe and fifth dark fringe on the screen. From one and other side of central maximum. For the wavelength 650 nanometer, capital D is a 1 meter and small d is equals to 0.1 millimeter. So it is mentioned in the question. क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे पास जो स्क्रीन है ना, ये मेरा स्क्रीन है और यहाँ पे कहीं पे मेरा सेंट्रल फ्रिंज है. तो सेंट्रल फ्रिंज से फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज होगा ये फोर्थ, ये फिफ्थ. तो यहाँ पे फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज, फोर्थ एंड फिफ्थ डार्क फ्रिंज. तो मुझे क्या करना है कि सेंट्रल फ्रिंज से थर्ड ब्राइट फ्रिंज जहाँ पे है एंड जहाँ पे फिफ्थ डार्क फ्रिंज है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है. चलो ये डिस्टेंस मुझे निकालना है. ये फिफ्थ डार्क है, तो मुझे ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है. तो कोई मुझे बताएगा मुझे क्या करना चाहिए? सर लैम्बडा डी बाई डी कॉमन और 2n माइनस 1 माइनस 2n. तो देखो पहले ऐसा करने का है आपको कि पहले ये लिखना है फॉर अ थर्ड ब्राइट फ्रिंज. तो पहले ब्राइट फ्रिंज का कैलकुलेशन कर दो. तो आपका एक्स स्मॉल डी बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्बडा लिखना चाहिए ब्राइट के लिए, या 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई लिखना चाहिए. एन लैम्बडा ब्राइट है तो 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 एन लैम्बडा. तो ये थर्ड है तो x3 डी बाई डी. चलो मैं एक काम करता हूँ. अच्छा इज इक्वल टू 3 लैम्बडा. तो x3 का वैल्यू क्या रहेगा भैया? तो ये मुझे क्या मिला? ये मुझे थर्ड ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन मिल गया. अब मैं क्या करूंगा? फॉर फिफ्थ डार्क फ्रिंज. तो डार्क के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए? एक्स स्मॉल डी बाई डी इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना चाहिए? 2n माइनस 1 लैम्बडा. 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई डी, लैम्बडा बाई 2. तो अब मुझे बताओ कि फिफ्थ डार्क है तो उसको x5 डैश बोलूंगा. डैश इज फॉर द डार्क. और यहाँ पे n का वैल्यू 5 प्लेस करो. तो 5 टू 10 माइनस 1 9 लैम्बडा बाई 2. तो ये मुझे बताओ कि x5 डैश का वैल्यू क्या आएगा? 9 बाई 2 लैम्बडा डी बाई डी आएगा. चलो ये पता चला फ्रेंड्स. तो केस वन के अंदर डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ब्राइट एंड फिफ्थ डार्क फ्रिंज on one side of a central fringe, on same side of a central fringe. चलो तो क्या मुझे करना पड़ेगा? ये x5 डैश मिला, ये x3 मिला, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्शन. तो इसको मैं x बोलता हूं तो x इज इक्वल टू x5 डैश माइनस x3. तो ये हो जाएगा 9 बाई 2 लैम्बडा डी बाई डी माइनस 3 लैम्बडा डी बाई डी. तो आपका हो जाएगा 9 बाई 2 माइनस 3 मतलब 3 बाई 2 लैम्बडा डी बाई डी. अब लैम्बडा डी एंड डी का तो वैल्यू है, तो क्या आप ये फाइंड कर सकते हो? और क्वेश्चन ऐसा भी है कि ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, तो सेंट्रल मैक्सिमम के एक साइड थर्ड ब्राइट एंड दूसरे साइड का फिफ्थ डार्क.
तो अब क्या करना पड़ेगा, सोचो, अपोजिट साइड के दोनों फ्रिंज का मुझे उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? एडिशन। एडिशन फॉर अपोजिट साइड ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमम फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज। तो अब मुझे x फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक साइड का थर्ड और दूसरे साइड का फिफ्थ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? x3 प्लस x5 डैश, तो ये आपका हो जाएगा 3 लैम्बडा कैपिटल डी प्लस 9/2 लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो आपका आंसर आ जाएगा 15/2 लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो क्या आपको ये समझ आया? यस सर। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का लास्ट बोर्ड के एग्जाम में था। तो क्या आप ये समझ पाए क्वेश्चन? यस और नो? यस सर। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था लास्ट बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स में। फ्रेंड्स, लेट्स સર સાચેમાં ઇનસિક્યોર છે મીટિંગ। हाँ, सिक्योरिटी का क्या मतलब, क्या है, क्या मतलब ये सिक्योर इनसिक्योर? સર એટલે દર વખતે ગ્રીન લોગો બતાવતો હતો, પેલો શિલ્ડ નો આવે ને લોગો ઝૂમ ની બાજુમાં ગ્રીન બતાવતો હતો એટલે સિક્યોર હતો। આ વખતે નથી। देख लेता हूँ। સર ગ્રીન જ બતાવે છે અમારો। સર ગ્રીન જ બતાવે છે। આ તો કદાચ મારે ઇનસિક્યોર હશે। We are using actually a pro version, paid version of the Zoom, so that it should be a secured. Okay. So friends, let's start discussing the diffraction. फ्रेंड्स, अब तक हमने इंटरफेरेंस कंप्लीट किया एंड इंटरफेरेंस के रिगार्डिंग सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने खत्म किए। अब हम डिफ्रैक्शन, ये चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है वो है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन के टॉपिक हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। डिफ्रैक्शन का थोड़ा बेसिक नॉलेज आज हम डिस्कस करेंगे और उसका डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो वैसे डिफ्रैक्शन है क्या? तो क्वेश्चन शुड अराइज दैट व्हाट इज द डिफ्रैक्शन। So friends, whenever wave front or ray is passing from some obstacle, passing some slit, so it is slightly bent. So this bending of waves from some obstacle is defined as a diffraction. तो डिफ्रैक्शन है क्या? तो जब कोई वेव फ्रंट स्लिट में से पास होता है, स्लिट के अंदर से पास होता है, तो वो थोड़ा बैंड हो जाता है, तो दैट बैंडिंग ऑफ द वेव फ्रंट इज नोन एज अ डिफ्रैक्शन। तो पुराने सिलेबस में एक एक्सपेरिमेंट था जिसके द्वारा इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूँ सो दैट यू विल गेट कंप्लीट आइडिया अबाउट द डिफ्रैक्शन। यहाँ पे वो चीज को निकाल दिया है, बड़ा प्रॉपर्ली नहीं दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि डिफ्रैक्शन क्या है। बट यहाँ पे हम कहाँ पे अटके थे, कौन से वाले क्वेश्चन पे लास्ट में अटके थे? या सो वी जस्ट डिस्कस्ड एट द लास्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 22, 3, 24 भी हो गया था, वो मैंने 25 भी लास्ट में किया था, distribution of the wave, distribution of the intensity. Yes, we are at starting what is a diffraction, who discovered it, and what kind of diffraction phenomenon occur in the waves. So it is just a basic question. The
phenomenon of waves around the opaque obstacle is called a diffraction. Accurate definition: diffraction is the physical effect produced by the limited part of the wavefront. तो ये है क्या, ये डेफिनेशन कहाँ से आया, कैसे पता चला? तो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आई एम गोइंग टू डिस्कस अ रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट. Ripple tank is not the name of any person. We are going to produce the ripples in the tank. That is why it is a ripple tank experiment. It is not like a ripple tank. It is not like that. So I am going to produce some ripples in the tank. That is why it is named as a ripple tank experiment. ये पुराने सिलेबस में ये एक्सपेरिमेंट था. तो इसके द्वारा आपको डिफ्रैक्शन क्या है वो आपको पता चलेगा. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टैंक है जो हमने ऊपर से उसको हम देख रहे हैं, ऊपर की साइड से उसको हम देख रहे हैं. It is filled with the water and we are viewing this tank from the top. और मेरे पास एक लीनियर मतलब एक रोड है मेरे पास. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ओसिलेट करा रहा हूँ. मैं उसको वाटर के साथ टच करूंगा, वापस से उसको ऊपर ले लूंगा, वापस से टच करूंगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा. ऐसे मैं उसको ओसिलेट करा विद पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मैं उसको ओसिलेट करा रहा हूँ. तो क्या क्या होगा फ्रेंड्स, कोई बताएगा क्या होगा? ये पानी के अंदर क्या होगा? अरे कुछ तो बोलो. तो ये पानी जनरेट होगी, वेव फ्रंट जनरेट होगा, वेव्स जनरेट हो गए, वेव फ्रंट जनरेट होगा और ये जो वेव्स है ना वो आगे बढ़ेंगे, ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेंगे. अब मैं ना कुछ वैक्स के कुछ ब्लॉक्स यहाँ पे लगा दूंगा और एक टाइप का स्लिट का मतलब एक टाइप का विंडो. तो ये स्लिट मैं क्रिएट करूंगा. तो अब ये जो वेव्स आ रहे हैं वो जब स्लिट ऑब्स्टेकल में से पास हो गए तो क्या वो पूरे वेव्स मतलब एज इट इज पास हो जाएंगे, कुछ होगा यहाँ पे? बताओ मुझे क्या होगा. जब ये वेव्स ऑब्स्टेकल में से पास हो गए तो क्या होगा, ये जो वेव फ्रंट आपको दिख रहा है तो उसका क्या होगा. तो जब वो ऑब्स्टेकल में से पास हो गए तो वो क्या हो जाएगा, उसका थोड़ा कुछ बेंट होके बाहर निकलेंगे. दिस बेंडिंग ऑफ द वेव फ्रंट फ्रॉम द ऑब्स्टेकल is known as a diffraction. Rays are always perpendicular to the wave front. So पहले जो waves rays थे ना वो ऐसे थे, पहले जो rays थे वो इस direction में थे. अब क्या होगा, waves are always perpendicular to the wave front. तो अब जो rays है ना उसको अगर wave front से perpendicular रखने का ट्राई करोगे तो वो ऐसे bent हो जाएंगे. तो मतलब क्या हुआ कि when any wave front will pass from the obstacle, when any wave front pass from the obstacle, it is slightly bent. This phenomenon is known as a diffraction. But आप देख सकते हो कि क्या ये ऑब्स्टेकल, क्या ये स्लिट में से पूरा वेव फ्रंट बाहर निकला या थोड़ा ही मतलब उसका लिमिटेड पार्ट ही बाहर निकला? बोलो, क्या पूरा वेव फ्रंट बाहर निकल रहा है या थोड़ा लिमिटेड पार्ट ही बाहर निकल रहा है? तो आप देख सकते हो कि स्लिट में से जब ये वेव फ्रंट बाहर निकलेगा तो उसका लिमिटेड पार्ट ही बाहर निकलेगा. तो डिफ्रैक्शन का दूसरा डेफिनेशन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लिमिटेड पार्ट, इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लिमिटेड पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट, लिमिटेड पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज अ डिफ्रैक्शन. तो उसको डिफ्रैक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पे मेरा जो विड्थ है, यहाँ पे जो मेरा ये जो मैंने ऑब्स्टेकल मतलब ये जो मैंने स्लिट बनाया है, ये स्लिट है मेरा. तो ये जो स्लिट है ना उसका विड्थ जो है ना वो d है और d इक्वल्स टू मैंने 5 लैम्डा रखा हुआ है. अब वही एक्सपेरिमेंट में वापस कर रहा हूँ, उसी एक्सपेरिमेंट को मैं वापस कर रहा हूँ. बट अभी जो है ना मैं फ्रिंज, ये जो मेरा विड्थ है ना स्लिट का विड्थ, वो मैं थोड़ा डिक्रीज करके वही एक्सपेरिमेंट में वापस कर रहा हूँ. बट थोड़ा उसका विड्थ में थोड़ा कम ले रहा हूँ. I'm going to perform the similar experiment by keeping a smaller width of a slit. तो मैं वो जो वैक्स ऑब्स्टेकल है
उसका थोड़ा मैं डिस्टेंस उसका थोड़ा बढ़ाऊंगा, वैक्स ऑब्स्टेकल। और जो स्लिट मैंने क्रिएट किया उसका लेंथ आप देख सकते हो कि पहले से थोड़ा स्लिट का विड्थ जो है ना वो थोड़ा कम है। वापस से क्या होगा यहाँ पे, वापस से यहाँ पे मैं ये रोड को ऊपर नीचे करूंगा तो वो क्या क्रिएट करेगा, वो वेव एंड वेव फ्रंट क्रिएट करेगा। वापस से जब ये वेव फ्रंट ऑब्स्टेकल पे इंसिडेंट हो गए तो वापस से वो बाहर निकलते टाइम थोड़ा बेंट हो जाएगा। बट मुझे अब बताओ कि यहाँ पे जो बेंडिंग फिनोमिनन है वो बढ़ेगा या डिक्रीज होगा? अभी जो मेरा स्लिट बढ़ेगा। है ना वो कम है, 2 लैम्डा है, तो ये जो बेंडिंग प्रोसेस है वो ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो अब ये जो वेव फ्रंट है ना इसमें से जब बाहर निकलेंगे तो थोड़ा ज्यादा बेंट होके बाहर निकलेंगे। तो थोड़ा ज्यादा मतलब इसका मतलब ऐसा हुआ, ये एक्सपेंड के द्वारा ये पता चला कि ये आपका जो डिफ्रैक्शन जो है ये आपके स्लिट का जो विड्थ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। जितना आप विड्थ कम करोगे उतना बेंडिंग का प्रोसेस ज्यादा रहेगा, उतना आपका बेंडिंग ज्यादा होगा, मतलब डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटली नोन, इट इज कम टू नो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट दैट डिफ्रैक्शन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, मतलब वो वेवलेंथ के सेम प्रोपोर्शन में है। तो ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पता चल रहा है कि ये जो डिफ्रैक्शन फिनोमिनन है, मतलब बेंडिंग का जो प्रोसेस है, ये डिफ्रैक्शन जो फिनोमिनन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा बाई डी रेशियो। लैम्बडा बाई डी रेशियो जितना ज्यादा होगा इतना वेव्स ज्यादा बेंड करेंगे, लैम्बडा बाई डी रेशियो जितना कम होगा उतना वेव्स कम डिफ्रैक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हम कंपेयर करें लाइट वेव्स एंड साउंड वेव, ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में कर दिया था। तो लाइट वेव्स एंड साउंड वेव के बारे में अगर सोचते हैं तो देखते हैं किसका बेंडिंग ज्यादा होगा, लाइट वेव का ज्यादा होगा या साउंड वेव का। तो लाइट वेव का जो वेवलेंथ होता है ना वो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम होता है, मतलब एवरेजली वी कैन कंसीडर 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और सपोज के एक रूम और दूसरे रूम के बीच में एक डोर है और डोर का जो विड्थ जनरली होता है वो 1 मीटर का, उससे थोड़ा कम होता है, बट फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग डोर विड्थ एज अ 1 मीटर। और वो जो डोर अगर ओपन है, अगर वो डोर मैंने ओपन कर दिया तो वो जो होगा वो हमारे लिए स्लिट होगा, दैट विल बिहेव एज अ स्लिट फॉर अस। तो जब लाइट वेव वहां से पास हो गए तो क्या वो बेंड करेंगे? तो लैम्बडा बाई डी रेशियो कितना रहेगा? तो 6 इंटू 10⁻⁷ सो ये लैम्बडा बाई डी जो रेशियो है ना वो बहुत ही कम है, टेंड्स टू 0 है, 0.000006, इट टेंड्स टू 0। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो ये विजिबल रीजन लाइट है उसका बेंडिंग बहुत ही कम होगा। तो इसी के वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो लाइट है ना वो स्ट्रेट पाथ पे, मतलब रे ऑप्टिक्स इसीलिए तो एग्जिस्टेंस में आया, रे ऑप्टिक्स इसी के वजह से तो एग्जिस्टेंस में आया, बिकॉज वो स्ट्रेट पाथ में ही आगे बढ़ेंगे, वो बेंड नहीं करेंगे कोई भी ऑब्स्टेकल से। करेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बेंड 100% नहीं करेंगे, बेंडिंग उसका बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसका डिफ्लेक्शन नहीं होगा, बट उसका बेंडिंग कम होगा। तो इसी के वजह से जो हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसको देख पाते हैं, बट हमारे पीछे कोई ऑब्जेक्ट है तो पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसमें से लाइट वेव्स हम ऐसे बेंड होके हमारी आंख में आते हैं, पीछे के ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं, यस और नो? हमारे पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्यों? बिकॉज वहां से जो लाइट रेज आते हैं वो बेंड होके हमारी आंख में नहीं आ सकते, हमको सामने का दिखाई देगा, बिकॉज वो जो लाइट वेव है ना वो सीधा ही मतलब प्रोपोगेट करते हैं, उसका बेंडिंग नहीं होता है। बट अगर साउंड वेव के बारे में सोचते हैं तो साउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है अप्रोक्सीमेटली वो 300 हर्ट्ज जितना होता है, और उसका जो स्पीड होता है ना वो भी ऑलमोस्ट 320 मीटर पर सेकंड। तो साउंड वेव का स्पीड हमने 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया था। तो अगर लैम्डा फाइंड करेंगे v/f करके तो आपको ऑलमोस्ट 1 मीटर मिलेगा। ये लैम्डा बाई डी रेशियो जो साउंड वेव का है वो लैम्डा 1 dB1 वही डोर है तो वो 1 मिलेगा।
मतलब साउंड वेव के लिए लैम्डा बाई डी रेशियो कंसिडरेबल है, कंसिडरेबल है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि साउंड वेव का डिफ्रैक्शन होगा, उसका बैंडिंग होगा। तो इसी के वजह से अगर कोई रूम के बाहर के साइड कोई खड़ा है तो हम उसको देख नहीं पा रहे, बट उसको हम सुन पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ये जो स्लिट होती है ना, मतलब एक जगह जहां से आ सके कुछ, तो वो स्लिट में से साउंड वेव का बैंडिंग होगा, तो हमको उसका आवाज सुनाई देगा, बट हम उसको देख नहीं सकते उसको, बिकॉज लाइट वेव का डिफ्रैक्शन बहुत ही कम अमाउंट में होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लाइट वेव का डिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, बट वो बहुत ही कम रहता है। तो ये डिफ्रैक्शन फिनोमेनन क्या है फ्रेंड्स, आपको पता चला? ये पता चला फ्रेंड्स, यस और नो? यस सर। और हमको ये भी पता चला कि किसका डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, किसका डिफ्रैक्शन कम होता है। तो बोले लाइट वेव का कम होता है, साउंड वेव का बहुत ज्यादा होता है। तो डिफ्रैक्शन का जो बेसिक फिनोमेनन था वो हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। उसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 26 एंड 26 के अंदर ही, हाँ 27 आपको 2 मार्क्स में करना है। उसमें लिखा हुआ है कि भाई क्यों हम पर्सन को देख नहीं पाते जो बाहर खड़ा है, उसको सुन क्यों पाते हैं, उसका रीजन यहाँ पे दिया गया है। तो वो 27 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में करना है। 26 फॉर अंडरस्टैंडिंग। डिफ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं। अगर स्लिट पे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट, देखो यहाँ पे स्लिट पे प्लेन वेव फ्रंट ही तो इंसिडेंट हुआ है, तो इस टाइप के डिफ्रैक्शन को फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। पर अगर स्लिट पे स्फेरिकल वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो उसको फ्रेनल डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है तो उसको फ्रेनल बोलेंगे, एंड अगर प्लेन वेव फ्रंट वहां पे इंसिडेंट हो रहा है तो उसको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आपने एग्जाम का पेपर दे दिया होगा, नहीं दिया है तो कंपलसरी एग्जाम का पेपर दो। एंड फ्रेंड्स, वापस से हम थर्सडे को एज पर द शेड्यूल मिलेंगे। डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिफ्रैक्शन आपका खत्म हो जाएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आज का सेशन यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। किसी को कुछ पूछना है?